Hello students, let's start. Class 5, subject previous, chapter 4. In last class, we were discussing this chapter. Few topics were completed and the remaining we study today. So all of you take your book, open page number 29. Page number 29. Championships. Morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, friends. Today we will talk about the starting from championships. Championships are the world's most popular sporting events. These give us an opportunity to watch the world's best sports persons play. These competitions are held between different national teams and are usually held once in 4 or 5 years. It's an sporting event in which we get chance different type of sports persons and it's held once in 4 or 5 years. चैंपियनशिप काफी बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है जिसमें बहुत सारी टीमें आपस में कॉम्पीट करती हैं। इन चैंपियनशिप्स में अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखने का मौका मिलता है और ये चैंपियनशिप्स ज्यादा से 4 से 5 होती है। The FIFA World Cup is one of such. It is a championship that decides the best football team in the world. FIFA World Cup. It is also an example of the championship. It is related to the football. ये फुटबॉल मैच की फुटबॉल गेम की चैंपियनशिप है जिसमें अलग अलग जगह की टीमें आती हैं और इस चैंपियनशिप में फाइट करती हैं और इनमें से कोई एक बेस्ट टीम विन करती है। Teams from different nations are divided in groups. Each team plays against all the teams listed in its group. Finally, the winners from each group compete against one another to decide the best team. चैंपियनशिप्स में नॉर्मली ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जैसे ग्रुप्स ए ग्रुप्स बी। ग्रुप ए में 3-4 टीमें रख दी जाती हैं, ग्रुप बी में भी 3-4 टीमें रख दी जाती हैं और इन सब में आपस में मैचेस कराए जाते हैं और इन मैचेस के थ्रू बाद में फाइनल मैच होता है जिसमें दो में से कोई एक टीम चैंपियनशिप जीतती है। ये चैंपियनशिप का गेम का फॉर्मेट होता है। Similarly, the Cricket World Cup is held every 4 years to decide the best team in the world. 5 leagues are championships for specific sports. FIFA World Cup की तरह ही क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप होता है। इसमें भी क्रिकेट की कोई बेस्ट टीम ही चैंपियनशिप जीतती है। इसके अलावा इंडिविजुअल गेम्स की एक चैंपियनशिप होती है जिसको ओलंपिक्स बोलते हैं। Olympics. Olympics is the largest sporting event in the world, which includes a number of different sports such as athletics, archery, and shooting. It has both individuals and team competitions against one another. The Olympics are held every 4 years and hosted by a different country each team. Almost every nation in the world participates in this event.
ये सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है, ये भी हर 4 इयर्स के बाद अरेंज होता है। इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल गेम्स और बहुत सारे टीम गेम्स भी होते हैं, दोनों तरह के इसमें पार्टिसिपेशन होते हैं। इसमें पूरे वर्ल्ड से प्लेयर्स आते हैं, compete करते हैं और बेस्ट वन डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर चैंपियनशिप के ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। Now local and traditional games. चुप रहो। Local and traditional games. There are many games in India which are played at the local level. Local sports are played traditionally in different parts of the country. India has a rich tradition of local games. Some of the many traditional games that developed in India are Chopat, Gilli Danda, Oj Neech, Steppu, Kho-Kho, Kabaddi, Langri Tang, and many more. इंडिया, हमारी कंट्री में लगभग हर एक प्लेस पर लोकल गेम्स होते हैं। हर एक प्लेस में लोग अपने कम्युनिटी बना करके वहां पर एक डिफरेंट टाइप का गेम बना लेते हैं और उसको वो खेलते हैं। तो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा लोकल गेम्स देखने में आते हैं। A few of these games are played even now. For example, Vallamkali or the snake boat race is a famous boat race that takes place during the festival of Onam in Kerala. बहुत सारे लोकल गेम्स हैं, इनमें से बहुत सारे लैप्स हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, अब नहीं खेले जाते, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो आज भी खेले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे केरला में एक गेम है जिसको स्नेक बोट रेस बोलते हैं। केरला में ओणम फेस्टिवल पर एक लोकल गेम होता है स्नेक बोट रेस। जिसको वल्लम कली के नाम से भी जानते हैं। ये स्नेक बोट रेस केरला में ओणम फेस्टिवल पर होता है। There are many such local games, however, unlike Vallam Kali, many of them are no longer popular. इसके अलावा ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो समय के साथ धीरे-धीरे खत्म हो चुके हैं। Now come at page number 30. पेज नंबर 30 पर आ जाइए। मार्शल आर्ट्स इन इंडिया। आइए हम बात करते हैं मार्शल आर्ट की। In ancient times, sports were often used to teach fighting techniques. This gave rise to martial arts. पहले के टाइम में पहले के समय में जो स्पोर्ट्स था एक्चुअल में ये फाइटिंग टेक्निक थी। जो बाद में मार्शल आर्ट के रूप में बन गई। पहले के समय में स्पोर्ट्स होता नहीं था, तो उसकी जगह ये फाइटिंग टेक्निक्स ही हुआ करती थी। It is a system of fighting techniques that can be used in war, self-defense, or even for entertainment. It was used to train soldiers in the art of fighting in earlier times. An accomplished martial artist can subdue enemies, attack effectively, and defend even when unarmed. India has a rich tradition of martial arts that dates back to the times of Ramayana
and Mahabharata. देखिए मार्शल आर्ट जिसमें सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। सेल्फ डिफेंस, जब किसी पर कोई अटैक कर दे तो ऐसे में कैसे खुद को बचाया जाए, ये सेल्फ डिफेंस होता है। तो मार्शल आर्ट में यही चीजें सिखाई जाती हैं। और अगर कोई मार्शल आर्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करे तो इसमें भी इतना ट्रेंड हो सकता है कि अगर उस पर कोई आर्म्ड व्यक्ति अटैक कर दे, मतलब जिसके पास हथियार हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी सबड्यू किया जा सकता है, मतलब उसको भी हराया जा सकता है इस मार्शल आर्ट के बल पे। पहले के समय में ये सिर्फ फाइटिंग प्रैक्टिस के लिए ही रिलेटेड था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये स्पोर्ट्स का रूप ले चुका है। पहले के समय में ये रामायण और महाभारत के टाइम से ही इसको जाना गया है। आप लोग अगर टीवी पे रामायण और महाभारत सीरियल्स देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि पहले के समय में डिफरेंट टाइप के युद्ध हुआ करते थे। अलग अलग तरह की लड़ाइयां होती थी, तो वो एक्चुअल में वही फाइटिंग टेक्निक्स थी जो लोगों को सिखाई जाती थी। The Indian martial arts have spread to many other countries as well. They have become one of the world's most recognized and appreciated forms of martial arts. Some of the most popular styles are the Mardani Kick of Maharashtra, Kanta of Manipur, Kalari Paitu of Kerala, and Silambam of Tamil Nadu. Although martial arts are no longer seen as a military training exercises, they have gained popularity as an entertainment sports. Judo and karate are also martial arts that are popular today. हमारी कंट्री का जो इंडियन मार्शल आर्ट है, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ है और पूरी दुनिया भर के लोगों ने इसको सीखा है। और डिफरेंट टाइप के मार्शल आर्ट्स हैं जो अलग अलग स्टेट में फेमस है और प्रेजेंट टाइम में ये टोटली स्पोर्ट्स का रूप ले चुका है। अब ये फाइटिंग टेक्निक से हट करके एक इवेंट, एक एंटरटेनमेंट के रूप में जाना जाने लगा है। चेंजिंग पैटर्न ऑफ लोकल गेम्स। Changing pattern of local games. Although India has many traditional and local games, these are slowly losing their popularity. Most of the traditional games are today played only in rural India. In most cities, children and adults prefer to play more modern games like cricket, football, basketball, badminton, and tennis. हमारी कंट्री इंडिया एक ट्रेडिशनल कंट्री है। मतलब हमारी कंट्री में चीजों को हम काफी लंबे समय से सुरक्षित रखे हैं और उनको जनरेशन बाय जनरेशन आगे दे रहे हैं। इसमें गेम्स भी इंक्लूड है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर गेम्स ऐसे हैं जो समय के साथ पीछे छूट गए हैं। अब लोग लोकल गेम्स खेलना पसंद नहीं करते। अब समय के साथ लोगों को क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब गेम ज्यादा पसंद आने लगे। अब लोग पहले वाली गेमों को धीरे धीरे छोड़ चुके हैं। चेंजिंग पैटर्न ऑफ लेजर। अब हम बात करते हैं कि अपने खाली समय में उसको यूटिलाइज करने का लोगों का सिस्टम किस तरीके से बदला है। Earlier people play games in their leisure time. However, our leisure activities have changed significantly since then. Now we spend our leisure time in many different ways.
like going to a restaurant, the cinemas, or a party. A lot of our leisure time is spent in watching television program. पहले के समय में लोगों का जो लेजर टाइम होता था, इसमें वो ज्यादातर स्पोर्ट्स को ही टाइम देते थे। पहले के समय में ना उतनी साइंस थी, ना उतनी टेक्नोलॉजीज थी, तो ऐसे में लोग अपना ज्यादातर टाइम स्पोर्ट्स में ही लगाते थे। इसीलिए लोकल गेम्स उस समय थी और काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब लोग बजाय स्पोर्ट्स खेलने के आउटिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। आउटिंग का मतलब अलग अलग जगह पे घूमना, रेस्टोरेंट, मॉल्स, इन सब में जाना इन्हें ज्यादा पसंद आता है। और इसके साथ साथ प्रेजेंट टाइम में टेलीविजन, इस पर भी लोग अपना ज्यादा से ज्यादा समय दे देते हैं, जिसकी वजह से दे डोंट हैव मच एनफ टाइम टू प्ले स्पोर्ट्स। टेक्नोलॉजी हैज आल्सो चेंज्ड द वे वी प्ले। Many of us enjoy playing video games rather than going out to play in the ground. The internet also offers many options to play online games. जैसे जैसे समय बदलता गया, साइंस आती गई, प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ऑनलाइन गेम्स बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। अब लोग अपना टाइम ऑनलाइन गेम्स में देने लगे हैं, घर बैठे ही दुनिया भर के लोगों के साथ वो खेल सकते हैं। तो ऐसे में इन सारी चीजों की वजह से भी हमारे जो ट्रेडिशनल गेम है वो काफी हद तक खत्म हो गए हैं। अब पेज नंबर 31। In fact, because of this, we now play most games alone. That deprives us of fresh air, companionship, and the fun of interacting with others. प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी के यूज की वजह से हम लोग अपना ज्यादातर समय अकेले ही बिता दे रहे हैं। कहने को तो वी आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, वी आर कनेक्टेड टू द मैनी पीपल्स, वी आर प्लेइंग गेम्स आल्सो, बट एक्चुअली वी आर लूजिंग आवर फ्रेंड्स। हम लोगों का साथ खो रहे हैं। जब भी हम किसी के साथ मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें उससे बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। वी लर्न द मैनी सोशल थिंग्स। लेकिन घर पर अकेले रहने से ये सब चीजें हमारे लिए लॉस का कारण बन गई है, और इनसे हमारा ट्रेडिशनल गेम्स भी लगभग पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। ब्रीदिंग। Have you observed your breathing pattern? Our heart often beats faster after we do some strenuous exercise like running. The oxygen we breathe in helps to digest the food and convert it into energy. We use this energy faster when we run. Therefore, our heart beats faster and we take deep breaths so that our body is able to take in more oxygen. कभी कभी आप अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, तो आपका एक्शन जितना ज्यादा होगा, काम आप जितना ज्यादा करेंगे, आपकी ब्रीदिंग उतनी तेज होगी, आपकी सांस तेजी से चलेगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, ये सब इंक्रीज होती जाएगी आपके एक्शन के अकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे हमारा शरीर मेहनत करता है, एक्सरसाइज करता है, वैसे वैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत महसूस होती है। ब्रीदिंग के दौरान हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। यही कारण है कि जब कोई थकता है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करता है, उसे ऑक्सीजन मिल जाती है, तो उसका एनर्जी लेवल मेंटेन हो जाता है। ब्रीदिंग हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन and remove harmful carbon dioxide from our body. Our lungs expand when we inhale and contract when we exhale. This explains why our chest expands when we breathe in and contract when we breathe out. जब भी कभी हम ब्रीदिंग करते हैं, तो ऐसे में हमारी बॉडी
ऑक्सीजन को गेन करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करती है शरीर से। ये हमारा ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। और इस ऑक्सीजन की गेनिंग और कार्बन डाइऑक्साइड के आउट के दौरान हमारे जो लंग्स होते हैं, ऑक्सीजन जब गेन करता है तो हमारा लंग्स एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है तो ऐसे हमारे लंग्स जो है वो सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बलून में जब हवा अंदर जाती है तो बलून एक्सपेंड करता है, और जब बलून से हवा बाहर जाती है तो बलून कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक इसी तरीके से हमारे लंग्स में भी होता है। नाउ ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड। Blow hot, blow cold. Sometimes we use our breath to warm our hands in winter. Sometimes we also use our breath to cool a hot cup of tea. How does this happen? This happens because our breath is warmer than the outside air, and hence we use it to warm our hands. At the same time, our breath is cooler than the hot tea, so it helps to cool the tea. We also blow on sparks of charcoal to help it burn. This happens because of our breath has oxygen, which helps the fire to burn. Winter season. विंटर का नाम सुनते ही थोड़ी सी कपकपी सी आ जाती है, क्योंकि विंटर सीजन में ये बहुत ही नॉर्मल एक्ट होता है जो हर व्यक्ति करता है। तो विंटर सीजन में लोग एक काम बहुत करते हैं, अपने हैंड्स पर एयर ब्लो करते हैं with the help of our mouth। अपने के मुंह की मदद से हैंड्स पर एयर ब्लो करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे माउथ के अंदर की जो एयर होती है वो हॉट होती है in the comparison of the atmosphere। सर्दी के मौसम में एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है वो कूल होती है, तो इसलिए हमारे माउथ की जो एयर है वो हॉट होती है, और जब हम इसको हैंड्स पर ब्लो करते हैं तो हमें हैंड्स में हॉटनेस फील होती है, गर्मी महसूस होती है। इसी कारण से अपने हाथों पर मुंह से हवा फेंकते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट अगर टी हॉट है तो इसको कूल करने के लिए हम एयर से ब्लो करते हैं। कहते हैं ना कि फूक फूक के पियो नहीं तो मुंह जल जाएगा, तो जो ये कहते हैं फूक फूक के पियो, ये एक्चुअल में एयर ब्लो करते हैं उस पे जिससे कि वो ठंडा हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टी का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, ये ज्यादा हॉट होती है। इसके कंपैरिजन में हमारे माउथ की जो एयर होती है वो कूल होती है, तो जब हम इसको टी पर ब्लो करते हैं तो टी जो है वो ठंडी होने लगती है। एक काम और होता है, विंटर सीजन में जब भी कभी हम वुड फायर करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो इसमें भी अगर आग को बढ़ाना है तो हम यहाँ भी एयर ब्लो करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम एयर ब्लो करते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, और ये ऑक्सीजन फायर को बढ़ाने में हेल्प करती है। आग के जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, तो जब हम इसमें एयर ब्लो करते हैं तो इस फायर को ऑक्सीजन मिलती है, और जिससे ये लकड़ी फिर से जलने लगती है, चारकोल में आग बढ़ जाती है। When we blow out air on a glass window, it looks misty. This is because our breath contains moisture. When we blow out air on a cool surface like the glass window,
the moisture changes into teeny droplets of water due to condensation. आप लोग जब भी कभी विंटर सीजन में ट्रेवलिंग करते हैं किसी बस में, नॉर्मली हम आपके स्कूल बस की ही बात कर रहे हैं, तो स्कूल बस के विंडो पर आप लोग जब भी एयर ब्लो करते हैं तो वहां पर आपको इस तरीके से बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और इससे आपको आर पार दिखना बंद हो जाता है, इसको मिस्टी बोलते हैं। तो जब हम एयर इस ग्लास पर ब्लो करते हैं तो वहां पर ड्रॉपलेट्स इसलिए बन जाते हैं क्योंकि एयर में जो वाटर होता है, वाटर वेपर, वो कूल होकर के इस ग्लास पर कलेक्ट हो जाता है। आसपास की जो एयर होती है उसमें वाटर वेपर वो कलेक्ट होके यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से ग्लास के उस पर दिखाई देना बंद हो जाता है। इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, जिसमें वाटर वेपर ठंडा होकर के किसी चीज पर इकट्ठा हो जाता है। Now exercise. Playing sports is a good form of exercise. Exercising is important as it keeps us fit, healthy, and happy. Sports like football and hockey make us run around, stretch, bend, and crouch. All these are part of vigorous exercise. We can exercise even when we are not playing. Simply stretching and breathing exercises should be a part of our daily routine. These help in building stamina and making us fit and active. Exercise. जो स्पोर्ट्स हम लोग खेलते हैं, स्पोर्ट्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज। स्पोर्ट्स के दौरान हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप के पोस्चर्स बनाती है, अलग अलग तरह की पोज में हमें मूव करना पड़ता है। तो जब अलग अलग डायरेक्शन में हमारी बॉडी बेंड करती है, झुकाव आता है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होने लगती है। और सबसे ज्यादा एक्सरसाइज होती है रनिंग से, इसीलिए कहा जाता है रनिंग, साइकिलिंग एंड वॉकिंग, दीज आर द बेस्ट एक्सरसाइज। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सरसाइज करने के लिए केवल स्पोर्ट्स ही जरूरी है। नॉर्मल डेली रूटीन में भी एक्सरसाइज पॉसिबल है। इसमें सिंपली आप ब्रीदिंग करके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म होता है योगा। हर किसी को सजेस्ट किया जाता है कि दिन में अपना हाफ आवर कम से कम योगा के लिए देना चाहिए, क्योंकि इसमें आप एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज के थ्रू हमारी बॉडी हेल्दी और फिट रहती है। हेल्दी और फिट रहने का सबसे अच्छा तरीका एक्सरसाइज ही होता है। ईटिंग के अलावा हमारी बॉडी की प्रॉपरली फिटनेस के लिए एक्सरसाइज ये बहुत कंपलसरी है। So with this topic, this chapter is now finished. So today's class is to be over. अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो you can note down and you can post in the WhatsApp group. I will give you the answer there. Okay, sir. So thank you all of you. Thank you, sir. Goodbye, sir. Bye.